students, how are you all? So good morning all of you. So welcome you again in Maximus. It is a digital learning platform to provide you quality education. Here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the rest of the best education. So this is not going to clear all your concepts but also going to make learn fast. Right? So in today's session we are going to start some so much interesting topic, right? So you already learned in class 8, you already learned in class 9, and in today in class 10th you are also going to learn, and this topic is also going to help you in class 11th, class 12th and going on forward, है ना? Not only that, after 5 year 10 year down the line, जब आप competition की papers दे रहे होगे, in that time this topic is also going to help you out, right? So we are going to begin the interesting topic, that is the volume and surface area, right? So this topic is very important. The most important part of this topic is the understanding of the shapes, right? So once you understand the shape, the concept of shape, then you will definitely learn all the concept of formula of these all shapes, right? So once you understand the formula of these all shapes, so easily you can do any kind of problem, right? So in today's session we are going to understand all the formula of all the shapes, right? And based on that we are going to do so many questions, right? So let's begin our first shape. So what is the first shape? This is a cube, right? So cube we all know, this is in a square kind of thing, है ना? So I can show you this cube, right? So this is a cube. So you can see they have, cube has 6 faces. So you can count this is the one shape, 1, 2, 3 and 4. There are 4 faces in the front and 2 faces on the top and bottom. So there are 6 faces, right, in a cube, right? So if you talk about the cube, है ना, because it's a kind of, a 6 square, squares are, combined together. So in a square we know length and breadth are, height are equals, right? So if this is A, so if the length is A, so if this is A, and so this again will be A, and this will again will be A. So L will be A, B will be A, and H will also be A. ठीक है? So if we'll try to find out the volumes, so we can definitely find out the volume, and volume will be A into A, that will be A cube, right? मैं जब वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम वो होता है जब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज़ अंदर डालना हो, ठीक है, इसके अंदर की चीज़ें की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर मान लो कि वाटर डालना हो, ठीक है, इसके अंदर अगर हवा डालना हो, तो इसके अंदर पूरा का पूरा कितना वाटर कितना हवा हम डाल सकते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ द शेप्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अगर इसका लेंथ अगर ये है, अगर ब्रेथ ये है एंड हाइट अगर ये है, तो हाउ मेनी व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप क्यूब, दिस विल बी ए क्यूब। और अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूँ, तो सरफेस एरिया वो होता है जिसको कि हम टच कर सकते हो, है ना, आउटर पोर्शन को हम टच कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास अगर ये क्यूब है और इस क्यूब को का मुझे अगर सरफेस एरिया निकालना हो, तो पोर्शन विच आई कैन टच, ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि इसमें 6 फेसेस हैं, तो ये 6 के 6 फेसेस में मैं कौन सा आप यू कैन ऑल्सो सी कि मैं 6 में से 6 ऑल शेप्स को मैं टच कर सकता हूँ, ठीक है। अगर पेंट करना हो इस क्यूब को, तो मैं इनर पोर्शन में तो पेंट कर नहीं सकता हूँ, बट मैं आउटर पोर्शन को मैं पेंट कर सकता हूँ। तो पोर्शन विच आर जो कि हम टच कर सकते हैं, जो कि हम फेस कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट इज नोन एज सरफेस एरिया, ठीक है। सो यू कैन सी द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज द ए स्क्वायर, राइट, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज ए स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो इसमें कितने फेसेस हैं, कितने स्क्वायर्स हैं, देयर आर 6 स्क्वायर्स, ठीक है। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सो ऑन टू ए स्क्वायर, तो देयर आर 1 2 6 squares are combined. So what will be the surface area? Surface area of the cube will be 6a square, right? So I think this is clear to all of you, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, कि हमने वॉल्यूम कैसे फाइंड किया एंड सरफेस एरिया कैसे फाइंड किया, ठीक है। अकॉर्डिंगली डायगोनल हम निकाल सकते हैं,
सी दिस इज a square, तो वी कैन फाइंड आउट दिस, ये कितना होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, बाय पाइथागोरस वी कैन फाइंड आउट द डायगोनल ऑफ दिस। उसके बाद मैं यहाँ से अगर ये वाला अगर एरिया निकालूंगा तो वी कैन फाइंड आउट द डायगोनल, ठीक है, तो वो भी बाय विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट। सो डायगोनल विल बी √3a एंड एजेस कितना होगा, एजेस डेफिनेटली कितना होगा b टू द पावर है ना 1/3, सो दैट विल बी द एजेस, ठीक है। So this is all about cube. I hope the concept of cube is clear to you. Now we'll move to another shape, correct? So the next shape is cuboid, ठीक है, just wait. So the next shape we have is cuboid. Cuboid and cube there is no so much difference. So this is a cuboid, है ना, तो आप देखो क्यूबाइड, क्यूब क्या था, एक स्क्वायर शेप था, बट क्यूबाइड क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप में सेम टू सेम काइंड ऑफ पैटर्न है, 6 फेसेस हैं इसमें भी, ठीक है, 6 फेसेस हैं एंड दे आर 12 एज एंड दे आर 8 कॉर्नर्स इन दिस क्यूबॉइड, राइट, और ये रेक्टेंगल शेप है। तो इफ दिस इज एल एंड दिस इज बी, तो आप एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज एल इनटू बी, ठीक है, एंड देयर आर हाउ मेनी शेप्स, हाउ मेनी फेसेस आर देयर, देयर आर 6 फेसेस आर देयर, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द total surface area of this cuboid, ठीक है, तो by that we can find out the total surface of cuboid, right? Similarly यहाँ पे same चीज दिया हुआ है, ठीक है, so you can see this is, let's take this is H, this is L and this is B, ठीक है, so change the color, right? ठीक है, चलो, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल बी L इंटू बी इंटू एच, मतलब इसके अंदर एक क्यूबॉइड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ एनीथिंग वी कैन पोर, राइट, सो दैट इज नोन एज वॉल्यूम, ठीक है, तो दैट विल बी L इंटू बी इंटू एच, दैट इज द क्यूबिक यूनिट्स, राइट। हमने टोटल सरफेस एरिया जस्ट नाउ वी हैव काउंटेड की 6 फेसेस हैं, ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी है ना, प्लस बी इंटू एच प्लस H इंटू एल एंड टोटल कितने होंगे, सो दैट विल बी 2, ठीक है, तो सेम का सेम टू सेम, ये अगर मान लो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ है, तो अलग अलग पोर्शन में इसका ये जो है, सो द हाइट एंड दिस विल बी द सेम, हियर द लेंथ एंड ब्रेथ विल बी द सेम, सिमिलरली देयर आर 6 फेसेस, सो वी विल, अगर मैं ऐड करूंगा सो दिस विल कम्स आउट 2 इंटू एल डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एच प्लस एल एच स्क्वायर यूनिट्स, राइट, सो दिस इज नोन एज टोटल सरफेस एरिया। सो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया वो होता है कि जैसे मैंने मान लो कि अगर ये मैंने क्यूब है, तो क्यूब को मैंने, क्यूबॉइड को मैंने रख दिया, ठीक है, नाउ वी कैन नॉट टच बॉटम एंड अप, राइट, तो ये जो चारों वाले पोर्शन है, लाइक अगर ये मेरे पास क्यूबॉइड है, तो अगर मैंने क्यूबॉइड को ऐसे रखा, तो ये जो चारों पोर्शन है, जो कि नॉट दिस पोर्शन एंड नॉट दिस पोर्शन, तो ये जो 4 पोर्शन हो गए, दिस बैक पोर्शन, दिस फ्रंट पोर्शन, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, दिस इज नोन एज लेटरल सरफेस एरिया। अगर हमारा एक कॉन्सेप्ट लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का अगर क्लियर हो, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दैट विल बी 2। यहाँ पे क्या था कि 6 साइड्स थे, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि 4 साइड्स हैं, तो 4 साइड्स को आप करोगे तो दिस विल बी 2h into L plus W, so this is all about cuboid, ठीक है, hope the concept of cuboid is clear to you, right? Let's move to another shape, so that is the cylinder, right? अब हमें बात करनी है सिलेंडर की, ठीक है, so cylinder you can see here, है ना, so this is round kind of shape, so this is a cylinder, right? If you see this is a cylinder, है ना, similar kind of shapes are there, right? तो एक cylinder has base, ये नीचे base होगा and upper भी base होगा, it's circular kind of thing, both the side is a circular kind of thing, circle kind of things is there, right? इसमें एक हाइट होती है, सर्टेन हाइट होती है, एंड क्योंकि ये सर्कल है, बेस एंड टॉप पे एक सर्कल होता है, माउंटेड होता है, एक सर्कल काइंड ऑफ थिंग होता है, सो दिस इज नोन एज, देयर विल बी अ रेडियस, सो दिस इज नोन एज रेडियस एंड दिस इज द हाइट, सो दिस इज यू कैन सी हियर, है ना, ये अगर मेरे पास अगर एक सिलेंडर है, तो कुछ ना कुछ इसका रेडियस होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ सेम टू सेम, जो रेडियस नीचे का होगा वो रेडियस ऊपर का होगा, एंड देयर इज सम हाइट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मुझे वॉल्यूम निकालना होगा अगर सिलेंडर का, तो वॉल्यूम मैं कैसे निकाल पाऊंगा, अगर वॉल्यूम, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, अगर
if I have given radius is r and height is h, so first of all we need to find out the area of सर्कल. ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, टॉप का एरिया कितना होगा, दिस विल बी पाई आर स्क्वायर. दिस वी ऑलरेडी नो, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. ठीक है, कितने सर्कल इसमें माउंटेड हैं, तो देयर आर इनडेफिनेट नंबर ऑफ सर्कल्स. जितनी हाइट होगी उतने सर्कल्स इसमें माउंटेड है, राइट. सो वी विल मल्टीप्लाई विद h. सो द वॉल्यूम ऑफ cylinder will be is, that's why this is pi r square h, right. So this is also given here, right. So this is volume of the cylinder is pi r square h. Here the radius of cylinder is r and height of cylinder is h, right. So this will make what, this will make 90 degree here. ठीक है, correct. The concept of volume of cylinder is clear to all of you. So can we move ahead, right. So let's move to the surface area and total lateral surface area of the cylinder, right. अभी मैं अगर lateral surface area की बात करूं और total surface area की बात करूं तो वो क्या हो सकता है, ठीक है. अगर मैं उसकी बात करूं तो वो let's take curve surface area. lateral surface area is also known as curve surface area, जो कि upper portion को मैं टच कर सका हूं, है ना, और टॉप एंड बॉटम को छोड़ के मैं बात कर रहा हूं. ठीक है, तो अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, सो इफ दिस इज अ कर्व एरिया, राइट, तो क्या होगा, सो अगर हम जानते हैं कि क्या होता है सर्कम, दिस इज नोन एज टू, दिस इज व्हाट, सर्कल की पेरीमीटर कितनी होती है, दिस इज 2 पाई आर. ठीक है, और ये कितना है, हाइट कितना है, दिस इज h. ठीक है, दैट विल बी 2 पाई आर h. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ curve surface. First we understand the concept of curve surface area. ठीक है, so this is the curve surface area of cylinder. Area of curve surface is how much, area कितना होगा, this is the 2 pi r, we know that है ना, this is the 2 pi r and h, this is the height. ठीक है, तो area of base कितना है हमारे पास, area of base कितना है, area of base is 2 pi r square. ठीक है, area of 2 bases कितना हो जाएगा, 2 pi r. अगर मेरे पास अगर ये टॉप है, दूसरा टॉप है, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 circles, right, 2 circles. So 2 circles will be 2 pi r square. ठीक है, and what is the height, height is h. ठीक है, so the total surface area of curved surface कितना हो जाएगा, 2 pi r h. So this will be the curved surface area of a cylinder. And the total surface area में क्या होगा, 2 pi r h तो होगा ही. ठीक है, क्योंकि वो कर्व पार्ट का एरिया है, and 2 more circles are added here, right. One is the top, another is the bottom, right. दो पार्ट जो कि added है, so we'll add both the parts, right. So that will make to total surface area. So the total surface area will be 2 pi r square plus 2 pi r and h, right. So this will be total surface area. Hope you understand. There are two circles kind of thing, right, in top and bottom. So this is the 2 pi r square and pi r square plus, so this is 2 pi r, and the total curved surface area of this cylinder is 2 pi r h. So that will make to total surface area of cylinder, right. Hope the concept of total surface area and curved surface area of the cylinder is clear to all of you, right. So let's, if you understand this, let's move to another concept of hollow cylinder. ठीक है, अब hollow cylinder में क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास ये बॉटल है, राइट, ये पेंसिल स्टैंड है, राइट, मैंने कलर्स इसमें बहुत सारे रखे हैं. ठीक है, सो अगर इसके टैप को अगर ओपन कर दूं, ठीक है, सो देयर आर काइंड ऑफ थिंग, काइंड ऑफ लेयर, राइट. तो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न इज हियर आल्सो, राइट. ये आप देख रहे हो, देयर आर 2 रेडियस, एक तो आउटर रेडियस है, दिस r1 इज आउटर रेडियस एंड r2 इज आउटर इनर रेडियस. ठीक है, तो यहाँ बीच में क्या है, बीच में एक लेयर है जो कि इस सिलेंडर को बना रहा है, राइट. एंड देयर इज हाइट इज गिवन h. ठीक है, अगर मुझे पता है कि अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h, तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर कितना होगा, पाई एंड h आर कांस्टेंट. ठीक है, आउटर रेडियस हो जाएगा माइनस इनर रेडियस हो जाएगा. ठीक है, तो आउटर रेडियस कितना है, r1. ठीक है, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर. दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ hollow
hollow cylinder. The cylinder is given pi outer radius minus inner radius का whole square, outer radius square minus inner radius square and into h. So you can see here अगर एक radius होता, ठीक है, तो ये क्या होता है, pi r square h होता है, right? r की जगह दो r है, दो radius है hollow cylinder में, so that's why this is the pi dot r1 square minus r2 square into h, ठीक है? This is very simple, right? Hope the concept is clear for hollow cylinder volume, ठीक है? अब अपन बात करते हैं एरिया ऑफ द बेस, ठीक है? एरिया ऑफ बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर है, ठीक है? हमने ये सर्कल पढ़ा था, सर्कल का एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, बट हियर इन दिस केस दे आर टू रेडियस, राइट? सो दिस विल बी पाई r1 square minus r2 square. So this is the area of base of a hollow cylinder, right? Then lateral surface area, lateral surface area means curved surface area, ठीक है? अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई r and h, ठीक है? r यहाँ पे कितने दो r हैं, r1 and r2, so this is the 2 पाई r1 plus r2. मैंने r1 plus r2 को, क्योंकि हम कर्व सरफेस एरिया में अंदर का जो एरिया है वो भी ले रहे हैं और बाहर का कर्व जो है, दो कर्व पार्ट है ना एक हॉलो में, एक तो बाहर का कर्व वाला पार्ट है और एक अंदर के कर्व वाला पार्ट है. लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं ये कैप को हटाता हूँ, एक तो ये बाहर वाला कर्व का पार्ट है एंड एक देयर इज अंदर वाला कर्व का पार्ट है, ठीक है? तो मुझे क्या करना है, r1 प्लस r2 दोनों को लेना पड़ेगा, तब जाके मुझे टोटल कर्व सरफेस एरिया निकल के आएगा, ठीक है? सो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस विल बी, राइट, 2 पाई r1 प्लस r2 इनटू h, ठीक है? ये हमें निकल के आ गया कर्व सरफेस एरिया, राइट? दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, राइट? और अगर टोटल सरफेस एरिया मुझे निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, हमने क्या पढ़ा था अभी, जस्ट नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हमने पढ़ा था, दैट वाज 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है? हमने ऊपर है नीचे वाले को लिया था, ठीक है? सो दिस इज द 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है? हमने ऊपर है नीचे लिया, वैसे हमने क्या पढ़ा था, 2 पाई r h, राइट? तो 2 पाई r and h, r कितने हमारे पास, here the radius are the two radius, ठीक है? So this is the 2 pi r1 square minus r2 square plus 2 pi r1 plus r2 square into h. So this already we got, ठीक है? By this we can understand how all the formula of hollow cylinders are, you know, कैसे ये बनाया जाता है, कैसे बना है ये formula, ठीक है? Hope the concept of the formula, all the formula is clear to all of you for hollow cylinder. So can we move ahead now, है ना? हमें आगे बढ़े, आगे बढ़ूँ मैं, ठीक है? आप इसको एक बार, आपको पहले क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आपने समझ लिया, आपको ये याद भी करना है, ठीक है, राइट? बट अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि वॉल्यूम किस कंडीशन में निकालना है, जब वॉल्यूम तब निकालना हमें, किसी भी शेप्स का वॉल्यूम तब निकालना जब हमें पता करना है उसके अंदर मुझे कोई भी चीज़ अगर पोर करना हो तो वो हमें अगर निकालना हो, तो दैट इन दैट केस हम विल यूज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम. अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया मतलब आउटर चीज़ के बारे में अगर क्वेश्चन में बात कर रहा हो, आउटर स्पेस के बारे में, शेप्स के बारे में अगर बात कर रहा हो, तो इन दैट केस दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया, ठीक है? और अगर कोई कर्व शेप है हमारे पास, है ना, कर्व शेप कब कब होगा हमारे पास, कर्व शेप सिलेंडर के केस में होगा, कर्व शेप स्फीयर के केसेस में होगा, है ना, स्फीयर के केसेस में. इन दैट केस हमें वो चीज़ अपने रखना है कि हमें कर्व से सरफेस एरिया पूछ रहा है या फिर टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, राइट? सो इन दैट केस विल यूज total surface area or curved surface area kind of concept, ठीक है? अब the concept is clear to you, so should we move ahead? So let's move to cone, ठीक है? So this is the cone. Cone you and you already know aware about these all things, है ना? Umbrella you already know, है ना? Birthday cap already know, you know. Cornetto, this ice cream you already know, and this is, you know, play cards you already know, and this, you know, this is a similar kind of shape, ठीक है? तो कोन में क्या होता है, कोन देखोगे, सो दिस इज द 1/3 ऑफ, एक्चुअली दिस इज द 1/3 ऑफ सिलेंडर, राइट? तो अगर सिलेंडर में जितना भी वॉल्यूम होता है ना, तो उसका 1/3 पार्ट अगर आप कट करके निकाल लोगे, सो दैट विल मेक, ठीक है? अगर मेरे पास एक सिलेंडर है और अगर मैं इसके 1/3 पार्ट को अगर कट कर दूं, ठीक है, सो दैट विल मेक टू दिस कोन, राइट? मैं इसको बताता हूँ कैसे है ये. अगर ये मेरे पास, अगर एक दिस इज सिलेंडर, ठीक है, ये अगर मेरे पास सिलेंडर है, तो अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करूँ लाइन एंड एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ठीक है, सो यू कैन सी
this portion is 1/3 of total, right, cylinder. So this 1/3 of total portion will known as cone, right? So by this we'll derive the volume of area, formula of volume of a cone, ठीक है also. So let's understand first this thing, है ना. So this is the height of a cylinder, ठीक है. This will known as h, ठीक है. And this is again radius, ठीक है. सिलेंडर, ऐसे सिलेंडर का रेडियस बॉटम एंड टॉप, दिस इज नोन एज रेडियस, ठीक है. दिस इज नोन एज रेडियस, राइट, ठीक है. एंड दिस एंटायर थिंग इज a base, and this is known as slant height, ठीक है. अब इसकी बात करूं, so this slant height is denoted by L, right. अब इसकी बात करूं तो आप देखोगे, अगर मेरे पास अगर कोई कोन हो, ठीक है, तो कोन इज एक्चुअली, अगर आप मैं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाउन, अगर बेस पे अगर मैं डालता हूँ, ठीक है, सो दिस विल मेक व्हाट, दिस विल मेक ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है. सो इफ आई नो height, if I know base this, so can we find out this hypotenuse we can find out. Yes, we can find with the help of Pythagoras. This will be h square plus r square, ठीक है. So by Pythagoras we can derive this. So L can be measured by h square, this is the height, and r square, this is the radius, ठीक है. तो in questions what happens many times, हमें या तो रेडियस दिया होगा या हाइट दिया होगा, ठीक है. तो इन दोनों से L हमें दिया नहीं होगा, हमें फाइंड करना होगा, वॉल्यूम फाइंड करना होगा, या इस टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया अगर फाइंड करना होगा तो ये दो चीज़ें दी होगी, है ना. तो तीसरी चीज़ L कैसे निकलेगा, L we can find out easily with the help of Pythagoras theorem, right, because this is the right angle triangle, correct. So the concept of, you hope you understand the cone आपको समझ में आ गया होगा. If this is understood, let's move to the all the formula of, let's derive all the formula of the cone, ठीक है. तो कोन के अगर फॉर्मूला वॉल्यूम की बात करूं तो ऑलरेडी वी टोल्ड कि जो कोन का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है. तो अगर ये 1/3 ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर है तो हमने सिलेंडर का वॉल्यूम क्या पढ़ा था, सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ा था पाई r स्क्वायर h. तो 1/3 होता है, सो दिस विल बी 1/3. सो द कोन का वॉल्यूम कितना होगा, द वॉल्यूम ऑफ कोन इज हाउ मच, सो दिस विल बी 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए राइट cylinder, correct. So what will be the lateral surface area, so what is lateral surface area और curved surface area both are same, ठीक है. तो इसमें curved part कौन कौन से हैं, so if you see the image, कर्व पार्ट कौन सा है, ये आउटर पार्ट जो भी है, ये आउटर पार्ट जो है, सो दिस इज कर्व पार्ट, इज द आउटर पार्ट ऑफ दिस कोन इज कर्व पार्ट, आउटर पार्ट ऑफ दिस कोन इज कर्व पार्ट, राइट. सो इन दिस केस, है ना, क्या होगा, जो आउटर पार्ट है जो कि कर्व एरिया हो, ठीक है. सो दैट इज हाउ मच, दैट इज पाई r and l, ठीक है. सो दिस इज द पाई r l. सो दिस इज नोन एज कर्व सरफेस एरिया. नाउ हियर इज समथिंग अदर थिंग इज गिवन. So this is S, this you can consider this is L, ठीक है. And this is L we can find out, and definitely we can find out with the help of Pythagoras. This is the r square, this is the radius, this is the r, and this is h, ठीक है. We can find out this with the help of Pythagoras, ठीक है. So we can also write this curved surface area is pi r under root r square plus h square, ठीक है. And thereafter the total surface area. The total surface area में क्या होगा कि जो बेस का जो पोर्शन है जो कि हमने टच नहीं किया, ठीक है, मतलब बेस, ये दिस इज द बेस, ठीक है. अगर आप देखोगे सो दिस इज द बेस, ठीक है. हमने कर्व सरफेस एरिया तो निकाल लिया, बट हमने जैसे मान लो सर अगर एक सिलेंडर, अगर एक कोन रखा हुआ हो तो बेस तो हमने टच नहीं किया था. सो दिस इज द बेस, यू कैन सी ना टॉप ऑफ दिस इज द बेस, ठीक है. सो बेस का एरिया कितना है, बेस का एरिया है, दिस इज द सर्कल, so the area of base is pi r square, ठीक है. So area of the base is pi r square. Then in that case we can say the total surface area will be how much, this will be pi r square plus pi r l. As we already know, this is under root r square plus h square, ठीक है. Hope the concept of this volume, curve volume, cone volume, curve surface area and total surface area of a cone is clear to all of you, right बच्चों. So hope the concept is clear to all of you for cone, volume, curved surface area, total surface area and volume of a cone.
So the concept is clear to all of you, so let's move to another topic, right? दूसरा टॉपिक क्या है, इसके बाद क्या आने वाला है? Oh my God, this is a sphere, right? So sphere already know, this is a ball, football. This is a kind of a globe, ठीक है? And I also have a sphere. This is a ball, right? So this is again a sphere, ठीक है? तो अगर इसकी बहुत this is very interesting से, ठीक है? इससे हम day to day basis पे हम भी interact with this thing, है ना? हम play करते हैं, ठीक है? So directly we'll understand, है ना? ये कुछ ना कुछ अगर मैं इसको बीचों बीच अगर कट करूँ, ठीक है? तो एक सर्कल के काइंड ऑफ थिंग्स ये फॉर्म करेगा, ठीक है? सो डायरेक्टली वी नो, है ना, कि द एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, है ना, दिस इज नोन एज वी यूज दिस, यू नो, टोटल सरफेस एरिया इज, है ना, एक तो ये सर्कल हो गया, एक दूसरा सर्कल हो गया, एक तीसरा सर्कल हो गया और चौथा सर्कल हो गया. इफ द स्फीयर रेडियस ऑफ स्फीयर इज r, ठीक है? अगर मैं बात करूँ इसका, अगर रेडियस अगर r है, ठीक है, so the total surface area of this sphere will be 4 pi r square, ठीक है? तो total surface area is 4 pi r square, ठीक है? और मैं अगर वॉल्यूम की बात करूँ, so the volume is this is 4 by 3 pi r cube, ठीक है? So by this we have to remember this formula of, है ना, sphere, right? So the total surface area is how much? Total surface area is 4 pi r square, 4 times of area of circle, ठीक है? How we have to remember? This is remember how we have to remember. हमें करना क्या है कि 4 times of the 4 addition of area of circle. So this is the area of sphere, right? And what is the volume of sphere? Volume of sphere is 4 by 3 pi r cube. So this we have to remember here, right? Hope the concept is clear to all of you, ठीक है? So let's move to another. So this is the hemisphere. Oh my God, this is very interesting shape, right? So this is kind of globe. This is the earth. So what we have done, इन्होंने क्या किया है? So divided earth into two parts. So I also have a ball. अगर मैं इस ball को अगर बीचों बीच अगर मैं कट करता हूँ, so this will make what? This will make is hemisphere, right? So same thing here they have done, ठीक है? तो this is the hemisphere. इन्होंने कट किया, तो ये एक अभी क्या किया था हमने, एक तो पूरा का पूरा बॉल था, है ना, बॉल को कट किया, तो एक बीच में एक सर्कल काइंड ऑफ थिंग निकल के आएगा, ठीक है? दैट विल बी बेस, जिसपे कि ये बॉल रहेगा, ठीक है? सो बेस का एरिया कितना है? बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है? अगर मान लो r इज अ सर्कल, r इज द रेडियस ऑफ, इफ कंसीडर, अगर एरिया, अगर स्फीयर का अगर एरिया, अगर रेडियस इज r, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज r एंड हाइट इज h, हाइट के h क्या होगा? तो रेडियस ही रहेगा, ठीक है? सो इन दैट केस we already know that total surface area of a sphere is what? 4 pi r square. अगर total surface area अगर 4 pi r square है, ठीक है, तो total surface area of sphere कितना होगा? हेमिस्फीयर कितना होगा? So this will divide by 2, so this is the 2 pi r, 2 pi r square plus और क्या होगा? This is the total surface area, ठीक है? This is not only curved surface area, the total surface area. एक पोजीशन रह गया, कौन सा पोजीशन रह गया जो कि हम टच नहीं कर पा रहे हैं कर्व सरफेस एरिया में? दिस बेस वाला पोजीशन, एंड द एरिया ऑफ दिस बेस वाला पोजीशन इज व्हाट? दिस इज पाई आर स्क्वायर. सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ a hemisphere will be 3 pi r square, right? Hope the concept is clear. And the lateral surface area is what? This is the curved surface area. तो ये तो कितना हो जाएगा? ये तो 4 pi r square टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर था, हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो कर्व सरफेस एरिया विल बी 2 pi r square, ठीक है? सो दिस इज द कर्व सरफेस एरिया. सो यू कैन, आई कैन आल्सो राइट, सो दिस इज कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? जो कि कर्व एरिया हो, जिसे कि हम टच कर पा रहे हो, ठीक है? क्योंकि बॉल जब, अगर मैं बॉल को रखूंगा, अगर है ना हाफ कटे हुए बॉल को, तो एक पोर्शन तो उसका बेस बन जाएगा. सो वी आर नॉट टचिंग दैट, सो दैट इज नोन एज लैटरल, ठीक है? एंड द टोटल सरफेस एरिया में अगर बॉल रखा हो कैसे, बट कुछ एरिया तो है ही उसका, सो दैट्स व्हाई दैट्स नोन एज टोटल सरफेस एरिया. वॉल्यूम ऑलरेडी नो, वॉल्यूम क्या है? स्फीयर का वॉल्यूम हमने क्या पढ़ा था? 4 by 3 pi r cube. तो अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, सो दिस विल बी 2, सो दिस विल बी 2 by 3 pi r cube. So this is the volume of hemisphere.
This is the total surface area of hemisphere and this is the curved surface area of hemisphere. Hope the concept is perfectly clear to all of you, right? अगर ये समझ में आ गया हो तो let's move ahead, है ना, आगे बढ़ूं, right? See the concept of this ना equations को समझना, है ना, ये बहुत important था कि एक बार हमें ये सारे फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। तो अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है। अदरवाइज हम हमेशा स्ट्रगल करते ही रहते हैं हमें कौन सा चीज़ को कब यूज करना है, राइट। सो लेट्स मूव अहेड। सो स्फेरिकल सेल, स्फेयर हमने ऑलरेडी पढ़ा, ठीक है, हमने वॉल्यूम ऑफ, सो दिस इज ए स्फेरिकल सेल, ठीक है। सेल क्या होता है, अगर ये मेरे पास एक बॉल है, आई हैव अ बॉल, ठीक है, अगर मैं इस बॉल को कट करूं, ठीक है, तो देयर इज दो देयर काइंड ऑफ थिन काइंड ऑफ लेयर, तो लेयर जो होगा, सो दिस इज द काइंड ऑफ लेयर, ठीक है। तो ये एक लेयर निकल के आएगा बॉल के अंदर से, ठीक है, और देयर विल बी द टू रेडियस अगेन, है ना, दो रेडियस टाइप की कुछ चीजें निकल के आएगी, ठीक है। एक तो रेडियस इनर रेडियस होगा और एक होगा आउटर रेडियस, सो दिस इज द आउटर, बी इज आउटर रेडियस एंड ए इज इनर रेडियस, ठीक है। तो इफ वी अंडरस्टैंड दिस shape, right, so we can also find out the volume of this spherical cell. What we can write, हम already जानते हैं, क्या जानते हैं कि volume of sphere क्या होता है, volume of sphere we already know that is 4/3 pi r cube, ठीक है। अब यहाँ पे r कितने हैं, r दो हैं, so one outer, this is r1 and this is r2, ठीक है। अगर मुझे ये पता है कि outer radius कितना r1 है and inner radius कितना r1 है, so we have derive the formula, this is 4/3 pi r cube, capital R, and this is small r, ठीक है। So this volume of this spherical cell will be 4/3 pi r1 cube minus r2 cube, ठीक है। We derive the volume of spherical cell. Hope the concept is totally understood by all of you, right? अगर ये समझ में आ गया है, so these all shapes हमारे पास क्लास 10th के बोर्ड में है। इसके अलावा एक फ्रस्टम है, ठीक है, फ्रस्टम है, सो वो भी हमें नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई टू डिस्कस, ठीक है। सो लेट्स डू सम एग्जांपल सो दैट हमें कैसे इस चीज़ को समझना है, कैसे इस सारे इक्वेशंस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्वेश्चंस में व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। लेट्स ट्राई टू डू दैट थिंग, राइट। सो वी हैव, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, ठीक है। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बॉल माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, राइट। तो लेट्स फर्स्ट पहले हम डिजाइन बनाते हैं कि क्या है, ठीक है। एक वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ, वेसल इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, ठीक है। एक तो हॉलो सिलेंडर है, कुछ ऐसा कुछ बता रहा है ये, है ना। एक हॉलो सिलेंडर बनाओ, सो दिस इज ए हॉलो सिलेंडर, ठीक है, दिस इज हॉलो सिलेंडर, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, माउंटेड है हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर माउंटेड है, राइट। कुछ इस तरीके का सेम बन के आ रहा है, राइट। The diameter of a hemisphere is 14 centimeter. So this is the diameter of a hemisphere. This is a 14 centimeter. D of a hemisphere is given. This is a 14 centimeter, right? So can you find out the R radius? So radius will be 14/2. So this will be 7 centimeter. चूँकि ये hemisphere is mounted over a cylinder, that's we can also say that the radius of a cylinder. This radius of a cylinder, we can also say that radius of a cylinder will be equals to radius of hemisphere, ठीक है। radius of a hemisphere, right, hemisphere, correct. So we have, अब इसमें एक चीज और एनालाइज करोगे, अगर रेडियस अगर हेमिस्फीयर का अगर r है, ठीक है, तो हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर वो कितना होगा, वो भी तो r ही होगा, राइट। तो अगर मान लो कि अगर रेडियस अगर हेमिस्फीयर का r है, सो दिस इज आल्सो r, तो दिस इज आल्सो 7 सेंटीमीटर,
7 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, एंड दिस हाइट ऑफ दिस हेमिस्फीयर आल्सो 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, और एंड द टोटल हाइट ऑफ ए वेसल इज 13 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल हाइट है दिस इज 13 सेंटीमीटर, एंड यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। सो कैन वी से द हाइट ऑफ दिस इज 13 माइनस 7 इज 6 सेंटीमीटर। यस, वी कैन डेफिनेटली से दिस थिंग, है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली निकल के आ रहा है। द कैपेसिटी ऑफ ए वेसल, सो व्हाट इज द कैपेसिटी, मींस कैपेसिटी मींस इस वेसल के अंदर अगर मुझे पानी डालना हो, अगर एयर डालना हो, तो कितना कैपेसिटी, मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे निकालना हो, बिकॉज देयर इज टू शेप्स, ठीक है, तो ठीक है, दोनों शेप्स को ऐड करते हैं। तो वॉल्यूम की इक्वेशन हमने जो लर्न करी उसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। हमने क्या लर्न किया था, इक्वेशन ऑफ ए हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब पढ़ा था हमने, ठीक है, प्लस हमने वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर क्या पढ़ा था हमने लर्न किया था पाई आर स्क्वायर एच, और एवरीथिंग इज गिवन हियर, हमारे पास सारे चीज दिए हुए हैं, वी कैन पुट ऑल द वैल्यू, ठीक है। सो लेट्स पुट द वैल्यू, है ना, आई ट्राई टू फाइंड आउट। सो दिस इज द 2/3, नाउ आई हैव टू डू, दिस इज द 2/3, pi is how much, pi is 22/7, right, into 22/7 into r is how much, r is 7, so this will be 7 into 7 into 7 plus, so this is again 22/7 into r is how much, r is 7 into 7, ठीक है। So this is 7 into 7 and h is how much, h we already find out 6, so multiply by 6, ठीक है। हमें ये सारा का सारा इक्वेट करना है, 7/7 कैंसिल, 7/7 1 कैंसिल, ठीक है। सो दिस इज 2 into 22 into 49 divided by 3 plus here this is a 22 into 7 into 6, ठीक है। सो दिस वी गॉट, ये वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। अगर ये इक्वेशन निकाल लोगे सो विल गेट द टोटल कैपेसिटी, so that will be total volume of this vessel, ठीक है। इसको ऐड करूँ, let's simplify this and add this, we will get the total capacity of a vessel. Now inner surface area of a vessel, अब हमें क्या निकालना है, we have to find out inner surface area of a vessel, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि पहले तो हमने पढ़ा कि वैसे हमें क्या कैपेसिटी निकालना था, so we find out the volume, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें inner surface area फाइंड आउट करना। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इनर, दिस इज नॉट इनर, आई थिंक दिस विल बी, मुझे लगता है कि ये गलत है, ठीक है। सो दिस विल बी लेटरल, ठीक है। सो दिस इज कर्व सरफेस एरिया वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। और अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो व्हाट आई डू, मुझे तो पता है इक्वेशन ऑफ कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और द इक्वेशन ऑफ कर्व सरफेस एरिया इज हाउ मच, अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूँ तो हमने क्या पढ़ा, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हमने अभी क्या लर्न किया था, अभी जस्ट नाउ वी हैव लर्न 2 pi r स्क्वायर, ठीक है। 4 pi r स्क्वायर हमने स्फीयर का पढ़ा था एंड हेमिस्फीयर का हमने 2 pi r स्क्वायर पढ़ा था, एंड टोटल सरफेस एरिया हमने क्या पढ़ा था हेमिस्फीयर का, द 2 pi r स्क्वायर प्लस r pi r स्क्वायर, 3 pi r स्क्वायर, ठीक है। सो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 pi r स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज हाउ मच, दिस इज द 2 pi r and h, ठीक है। तो by this we can take common, so the 2 pi we have taken common, right, r square is how much, this is the 7 square, this is 49, the 7 into 7 is 49, here this is r into h, plus we can write r is how much 7, h is how much 6, so this is 42, ठीक है। So by this we can find out 2 into 22/7, simplify equation like this, ठीक है। So this is the 80 plus 11, so this is the 91, ठीक है। So let's simplify this and you will get the square unit, ठीक है। So this centimeter square, this will be centimeter square and this will be centimeter cube, ठीक है, cube unit, right। So by this way we find out the capacity of this vessel and the lateral surface area of this vessel, ठीक है। अब द कंसेप्ट इज क्लियर, है ना, कैसे हमने यूज किया
ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, समझो एक और क्वेश्चन को। So we have the question, cylindrical tub of a radius 5 centimeter, right, and the length is 9.8 centimeter is full of water, right. एक cylindrical tub है of radius, एक tub बना लेते हैं अपन, है ना, एक will try to make a tub, एक tub बनाओ, है ना, ये हमारे पास एक tub है, ठीक है। So what is the tub? Cylindrical tub है। So this is a tub, right, दिस इज ए टब, ठीक है। अब इस टब सिलिंड्रिकल टब है, इसमें रेडियस 5 सेंटीमीटर, सो दिस इज 5 सेंटीमीटर, राइट। होप ये आपको दिख रहा हो, है ना, ये लो मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। एंड हाइट इज हाउ मच, एंड हाइट इज 9.8 सेंटीमीटर, 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो टू थिंग्स इज गिवन फॉर सिलेंडर, so we can easily find out the volume of the cylinder, ठीक है। so this will be हम यहाँ पे पार कर देते हैं, इसको लिखते हैं, ठीक है। this is a 5, r is how much, this is 25, ठीक है। h is how much, this is a 9.8, ठीक है। ये हमने निकाल के पार कर दिया यहाँ पे, ठीक है। we'll use अलग से हम यूज करेंगे बाद में। a solid in the form of right circular cone mounted on a hemisphere, है ना, एक, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि एक सॉलिड है ना, सॉलिड है जो कि कोन के टाइप का है, ठीक है। ये कुछ कोन के टाइप का, इस टाइप का कुछ है, ठीक है। ये कोन है और इसके ऊपर में एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये माउंट इसके अंदर इमर्ज कर दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ इमर्ज किया है, ठीक है। अब इसमें कुछ और दिया है इसने, इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर, इसमें गिवन, व्हाट इज गिवन, दिस इज गिवन r is given 3.5 centimeter. Radius of the hemisphere is given 3.5. So if the radius of hemisphere is 3.5, so the radius of will be equals to radius of cone 2, ठीक है। radius का कोण भी वही होगा और radius of hemisphere भी सेम होगा, ठीक है। So two things is already given in one point, there is 2 points are given, two things are given, ठीक है। And the height of the cone outside the hemisphere is 8.5 centimeter, right. So height of a cone outside hemisphere is 8.5. तो अगर मैं बात करूँ, so this is given how much, this total height of outside the hemisphere is 8.5, height of cone outside the hemisphere is 8.5. This is 8.5, ठीक है, total height is 8.5, height of cone will be how much, this will be 5, इतना ही होगा, ठीक है, क्योंकि अगर रेडियस is 3.5, so 8.5 minus 3.5 will be 5. The height of this will be the height of what, this will be height of यहाँ पे cone, ठीक है। अब मुझे क्या करना, ये तो मैंने पार कर लिया था पहले, टोटल है ना, इसमें पूरा का पूरा वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, जिस कोन एंड हेमिस्फीयर दोनों इंक्लूड करके मुझे वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। सो वी नो द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस हमने क्या पढ़ा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी गिवन आर इज कॉमन, ठीक है। So this is the pi into 22/7, ठीक है। And what is this? This is the radius, how much? The radius is 3.5, ठीक है। This is 3.5 into 3.5, ठीक है, plus 1/3 into 22/7 into, so this is 3.5 into 3.5 into 5, this is that, ठीक है। तो we can write this, अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, ठीक है। So this will be 2/3 into 22/7 into 35 into 35 into 35 divided by 1000, ठीक है, plus 1/3 into 22/7, so this will be 55 into 35 divided by 100 into 5, 7 5 जा, ठीक है। So this is the 20, so this is the
ठीक है, 22 इंटू 5 बाय 12, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कुछ आएगा यहाँ पे, सो हियर वी विल गेट, सो 7 5 जा, दिस विल बी 200, ठीक है। सो 7 5 जा, दिस विल बी 440, and again this is 7 and this will get what 8 8 5 जा, ठीक है। और 8 है, so we can again simplify 4 and this will be 2, this will be 11, ठीक है। एक 7 से एक 7 में कैंसिल कर दूंगा, सो कुछ ऐसा आ रहा है, निकल के आ रहा है 49 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 6 प्लस हियर दिस इज 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 डिवाइड बाय 12, ठीक है। ये सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। ये जो टोटल वॉल्यूम आएगा, इसका वॉल्यूम इस टोटल एरिया का वॉल्यूम आ जाएगा, इस टोटल शेप का वॉल्यूम आएगा, एंड दिस वॉल्यूम, एक वॉल्यूम यहाँ पे है, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, सो दिस विल बी 10, सो दिस इज 5 इंटू 5, सो 2 एंड दिस इज 5, ठीक है। एंड हियर दिस इज 22/7। तो इस टोटल वॉल्यूम में ये टोटल वॉल्यूम हो गया, ठीक है, सिलेंडर, उसमें ये वॉल्यूम माइनस करोगे, सो विल गेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इनसाइड द दिस वेसल, ठीक है। होप द कांसेप्ट इज टोटली एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अगर ये सारी चीजें सही हो, सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, ठीक है। सो नाउ वी डोंट हैव क्वेश्चन, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कांसेप्ट ऑफ वॉल्यूम, lateral surface area, that is also curved surface area, total surface area, right? And all the concept of we learn about cube, we learn about the cuboid, we learn about cone, we learn about cylinder, we learn about sphere, hemisphere and hollow cylinders, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और शेप्स के बारे में भी आपको समझ में आया होगा। If you like this video, if you like this class, like this session, please like our video, share our video and subscribe our channel so that you get regular updates. Thank you very much. Okay, bye bye. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.